Okay, people, in English, we are going to start with this chapter, Ishwaran the storyteller. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was this a ghost? The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. So जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन साइट होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लेबरर लोग काम करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इंजीनियर आके भाई साहब बता कर जाता है क्या क्या काम करना है, लेकिन जो लेबरर्स होते हैं वो अपना ही कुछ करते रहते हैं. तो लेबरर्स ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो लेबरर्स हैं उनको पगार देनी होती है दिन भर की. तो ये सारा काम जो है एक सुपरवाइजर की जरूरत पड़ती है. एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड ऑल यू वुड ऑलवेज रिक्वायर्ड a supervisor. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो हर बार उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना रहता था, ठीक है, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस. क्लियर है, समझ में आ रही है. तो अलग अलग साइट्स पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चलता था और जहाँ जहाँ पे भी लेबरर्स का एम्प्लॉयमेंट होता था वहाँ पे एज अ सुपरवाइजर महिंद्रा हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, he had to keep from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. अलग अलग साइट्स पे काम चलते थे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से काम चलता था और महेंद्र को भी मूव करना रहता था. ठीक है, ही वॉज अ बैचलर, मतलब नॉन मैरिड, ठीक है, सिंगल. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो अभी क्या होता है, जब आप किसी मतलब फैमिली के साथ नहीं मूव कर रहे हैं तो आप कहीं भी रह लेंगे, राइट. कहीं पे टेंट पे उसको रहने को जगह मिलती थी, कहीं पे भाई साहब एक रूम मिल गया, कहीं पे ऐसे गोदाउन में रह लिया. तो अलग अलग जगहों पे वो अपने आप को एडजस्ट करता हुआ रह लेता था, क्योंकि वो उसके साथ उसकी कोई फैमिली नहीं थी. He was still a bachelor, ठीक है. But one asset he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. तो ये जो भाई साहब महेंद्र के जो कुक थे भाई साहब, ठीक है, ईश्वरन, he was a very मतलब adjustable cook. As Mahindra was, he was also very adjustable. तो he never used to complain, अरे ये कहाँ आ गए भाई साहब अभी, ठीक है, ये कहाँ लेकर जा रहे हो, ठीक है. तो मतलब ये इनके लिए कुक करता था. Obviously he was busy all day long at the construction sites or the sites where he is supposed to supervise people, so he didn't have the time to cook. So this person Ishwaran used to accompany him from place to place, and Ishwaran was also as adjustable as Mahindra was. Okay, okay. He cooked for Mahindra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. तो भाई साहब ये जो भी उसके काम थे, कपड़े धोना, ठीक है, मतलब खाना बनाना, जो भी इनका जो काम था महेंद्र का, वो करके देता था इसको. और क्योंकि दोनों ही रहते थे तो ये भाई साहब उसको कहानियां सुनाता था, अलग अलग कहानियां सुनाता था. ठीक है, तो ये कहानी जो आप पढ़ रहे हैं ये भी ईश्वरन की सुनाई गई एक कहानी है, इसीलिए नाम है इस चैप्टर का ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी एज नरेटेड बाई ईश्वरन टू महेंद्र. ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो इसकी बहुत कमाल की क्वालिटी ये थी कि कहीं भी जाओ इसको एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगता था. इसका काम था मेनली कुकिंग, और ये कहीं अगर नए जगह पे आप जाएंगे तो पहले दुकान ढूंढेंगे कहाँ पे भाई साहब राशन मिलेगा, कहाँ पे भाई साहब सब्जी मिलेगी, कहाँ पे मसाला मिलेगा. बट ही वाज लाइक एवर रेडी. जहाँ पे भी आप जाएंगे, ठीक है, एक घंटे में भाई साहब आपको एकदम डिलीशियस खाना मिल जाएगा. ठीक है, सो ही वाज सो रेडी विथ हिज एंटायर थिंग. इट वाज लाइक अ मैजिक. ठीक है, ईश्वरन वाज ऑलवेज रेडी वेर एवर. अभी इनका काम भाई साहब ऐसा ही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ठीक है, कुछ मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये व्यवस्था इनकी अच्छी थी. ठीक है, wherever they used to shift within an hour the meal was ready. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Leisurely मतलब जैसे महेंद्र अपना
खाना खाया, सुबह का ब्रेकफास्ट किया, फिर टिफिन बांध के चल दिया भाई साहब अपने काम के साइड पे। और ईश्वरन क्या करता था भाई साहब, जो उसके क्लोथ्स वॉशिंग का काम है ये सब करता था। और लेजरली बात, लेजरली मतलब आराम से नहा रहे भाई साहब, 10 बार 12 बाल्टी पानी से नहाए जा रहे, ठीक है। सो यू वुड हैव अ लेजरली बात। और जैसे मतलब हिंदू लोग करते हैं ना, मतलब नहाने के समय प्रेयर्स बोलते हैं, तो ये भी नहाने के समय प्रेयर्स बोलता था, ठीक है। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. अभी लंच टाइम तक भाई साहब ये से टाइम पास हुआ, उसके बाद थोड़ा सा खाना खाया और फिर एक अच्छा खासा नींद हो जाएगा। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. तो ये बुक पढ़ने का इसका शौक था, ठीक है। He was basically into book reading. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold Ishwaran in thrall. तो कोई मतलब थ्रिलिंग बुक पढ़ता था, कोई क्राइम रिलेटेड बुक पढ़ता था, कोई मतलब एडवेंचरस बुक पढ़ता था ये, ठीक है। और ये मतलब जिन लोगों को बुक पढ़ने की आदत है वो जब तक उस बुक को खत्म नहीं कर लेते ना तो वो चैन नहीं होता है, ठीक है। पीपल बेसिकली हु हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, स्पेशली नॉवेल्स एंड ऑल, उसमें उनका जैसे आप सीरीज देखते होगे तो जब तक भाई साहब सीरीज का पूरा खत्म ना हो जाए तब तक चैन नहीं, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। सो इस तरह से जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनकी भी एक एंग्जाइटी लेवल क्रिएट होती है, ठीक है। द सीक्वेंस इज सच इन अ बुक रीडिंग दैट एंजाइटी लेवल इज क्रिएटेड, एंड दैट हैपेंड विद ईश्वरन एज वेल। His own descriptions were generally influenced by the Tamil authors that he read. अभी ये जो कहानियाँ सुनाता था अपने बॉस को, तो ये ज़्यादा करके ये तमिल बुक्स की कहानी, पढ़ी हुई कहानियाँ सुनाता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो छोटी छोटी चीज़ों को भी जब ये महेंद्र को सुनाता था तो उसमें वो मतलब ये जो बुक राइटर्स की स्टाइल है सुनाने की, सस्पेंस क्रिएट करने का, फिर उसको थ्रिलिंग बनाने का और फिर एक अनएक्सपेक्टेड एंड देने का, इस तरीके के वो दांव पेज भी इसके साथ खेलता था, ठीक है। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. तो आप देखो एक सिंपल सा इंसिडेंट है कि वही कोई पेड़ गिरा हुआ है रास्ते पे, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने रास्ते पे एक गिरा हुआ पेड़ देखा। लेकिन क्योंकि ईश्वरन बहुत सारे बुक्स रीड कर चुका था तो उसको हर चीज़ को ड्रामा के साथ प्रेजेंट करने का एक हैबिट हो गया था, ठीक है। सिंपल, आप अगर बुक पढ़ते हो तो ऐसा ही होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत विस्तारित रूप से डिस्क्राइब किया जाता है। सो ईश्वरन ऑल्सो हैड, since he had this habit of reading books, he used to create suspense and thrill even in small things. like एक सूखा पेड़ भाई साहब गिर गया है, ठीक है, उसका क्या बोलना है, वो पेड़ गिर गया है, रास्ते पे गिरा है, लेकिन ये भाई साहब इसको ड्रामेटाइज, अच्छा ऐसा लगा कि कोई जानवर, बहुत बड़ा जानवर गिरा पड़ा है, ठीक है। जब मैं इसके क्लोज गया तो मुझे दिखा कि हाँ ये एक सूखा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है। तो यूज टू ड्रामेटाइज ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ही हैड द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। और बुक्स में भाई साहब इस तरह से ड्रामेटाइज किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। But as I came closer, okay, Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwar's tales uncritically. Uncritically मतलब हाँ क्या मतलब वेरीफाई, अनक्रिटिकल मतलब समझो अगर आप कुछ सुना रहे हैं और सामने वाला बंदा आपका सुन रहा है, ठीक है, सिर्फ सुन रहा है, वो कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा क्यों, इसको हम अनक्रिटिकल नहीं बोलेंगे, क्रिटिकल बोलेंगे, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो अगर उसको क्वेश्चन किया जाए तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल। लेकिन महेंद्र भाई साहब इतना सारा दिन काम करके आता था और ये भाई साहब कहानी सुनाते बैठता था, उसको छोटी छोटी चीज़ों को ड्रामेटिकली कहानी सुनाता था, तो ही यूज्ड टू अनक्रिटिकली जस्ट लिसन टू हिम, ठीक है। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, टिम्बर मतलब समझते हैं भाई साहब, बांस, ठीक है। ईश्वरन वुड बिगिन, टिम्बर मतलब लकड़ी, बेसिकली ज़्यादा करके फर्नीचर इससे बनते हैं। Ishwaran would begin, this is a richly wooded forest all around, the logs are hauled on to lorries by elephants, ठीक है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे बहुत सारा टिम्बर मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो टिम्बर मतलब भाई साहब ये सब जो पेड़ होते हैं, तो ये पेड़ को भाई साहब काटा जाता है और काट कर एलिफेंट्स से लॉरीज में अपलोड किया जाता है, ठीक है। सो इट यूज्ड टू बी अपलोडेड इन द लॉरीज बाय द एलिफेंट्स। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, ठीक है। The logs were hauled on the lorries by elephants. They were huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced man out is not able to control them. Man out मतलब समझते हैं,
जो एलिफेंट चलाता है, एलिफेंट के ऊपर जो बैठता है उसको मैन आउट बोलते हैं, ठीक है। सो अगर ये भाई साहब खिसक गई इनकी, मतलब इसका दिमाग अगर खराब हो गया, तो जो सबसे एक्सपीरियंस मैन आउट है वो भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दे वे सो वाइल्ड बीस्ट, ठीक है। ओके, आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो ये भाई साहब कोई कहानी सुनाएगा जिसमें किसी एलिफेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. तो ये क्या सुनाने लगा, एक टस्कर था, टस्कर मतलब एक हाथी, ठीक है, जिसके टस्क्स डेवलप हो गए हैं, ठीक है, टस्क। टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। तो ये भाई साहब टिम्बर यार्ड में हाथी लोगों को पाला जाता था ताकि जो टिम्बर काटा गया है इसको इफेक्टिवली लॉरीज में लोड किया जा सके, ठीक है। तो एक भाई साहब टस्कर वहां से भागा, मतलब एक एलिफेंट वहां से भागा। एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगैन टू रोम अबाउट, स्टैंपिंग ऑन बुशेस, बुशेस को कुचल कर, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल। सब तोड़ फोड़ करके भाई साहब ये आगे भाग रहा है, ठीक है। You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ये स्टोरी सुनाते सुनाते इतना ज़्यादा स्टोरी में इनग्रॉस्ड हो जाता था कि ये एक्शंस करके दिखाने लगता था। ये भाई साहब, ये एलिफेंट ने ऐसे अपना पैर रखा, इसने अपना सूंड हिलाया, ऐसे ये हरकतें करके दिखाने लगता था, ठीक है। हिज बॉडी लैंग्वेज यूज्ड टू पोर्ट्रे व्हाट ही इज डिस्क्राइबिंग, ही वाज सो इन्वॉल्व। ओके, द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स। तो जैसे माचिस की तीलियों को कोई तोड़ता है, तो हमारे टाउन में जो फेंसेस हैं उसको ये तोड़ रहा था भाई साहब, ठीक है। He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. People ran helter skelter in panic. Helter skelter मतलब अफला तफली, helter skelter मतलब किधर जाना है भाई साहब, भागो भागो, ऐसा वाला, ठीक है। So he has come and he was behaving like a mad beast. Okay, he would continue. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classrooms and shut the doors tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water and uprooting the shrubs. तो स्कूल में भी जाकर इसने अच्छा खासा अफला तफली मचा दिया, ठीक है। स्कूल में जो स्पोर्ट्स के जगह थे उनको भी पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है। तो बाल्टी उल्टी सब तोड़ डाला इसने। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, from where they helplessly watched the depredations of the elephant. डेप्रेडेशन मतलब इसका जो कॉन्क्वेस्ट चल रहा था भाई साहब, पूरा सब अफला तफली जो तहस नहस का कार्यक्रम ये चला रहा था, ठीक है। इसको ऊपर से ये देख रहा था, टीचर्स लोग इसको देख रहे थे। The streets were empty, as if inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. इसके खौफ से सारे स्ट्रीट्स जो थे एम्प्टी हो गए, ठीक है, क्योंकि सब लोगों को इससे डर था, ठीक है। द स्ट्रीट्स वेयर एम्प्टी एंड द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड। पूरा टाउन मानो खाली हो गया था। आई वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। पता नहीं मेरे को अचानक से क्या हुआ, मैं भी रूफ टॉप से ये देख रहा था, ठीक है, अपने छत से ये देख रहा था। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड राउंड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। तो मैंने एक केन लिया, केन मतलब समझते हैं, शुगर केन, वाह वाह वाह। तुम्हारे जमाने में तुमने खाया नहीं है ना भाई साहब, तुम्हारे यहाँ पे तो अलाउ नहीं है भाई साहब मार और खाना। हमारा तो भाई साहब आधा सूझा ही रहता था, इतनी पड़ती थी हमको भाई साहब, मतलब हमको बैठने को नहीं होता था, बहुत जोर जोर से हमारा प्रिंसिपल हमको मारता था। तभी अंधाधुंध मारा मारी चलती थी, मतलब टीचर्स को पूरा खुल्लम खुल्ला मारा मारी अलाउड था। अभी तो आपका भाई साहब बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ, वो केन रहते हैं, लेकिन यूज करते हैं क्या, वो मारते हैं क्या? ओके, अलाउड नहीं है अभी तो फिलहाल मारना, लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा था, मैं मतलब उतने दूर पे बैठा हुआ था और मेरे साथ एक और बंदा था, तो उसने मेरे साथ कुछ ऐसे बात की, मेरे साथ ऐसे ही बात करने की कोशिश की, तो टीचर ने डस्टर उठाया, धाप से दिया, सर ने हमारे डस्टर फेंका। और डस्टर वाला वो वुडन वाला डस्टर था हमारा, जैसे ये वाला डस्टर होता है ना, चॉक बोर्ड था ना, तो वुडन वाला डस्टर, ओ भाई साहब पूरा खून खून। तो फिर मैं बोला कि क्या हो गया सर, बंद कर देते हैं। टीचर्स के लिए पहले केन बनाया जाता था भाई साहब, वो बहुत मोटी सी डंडी होती थी,
पड़ जाए ना वैसा 3-4 दिन आप ठीक से बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है, थाड़ थाड़ मारते थे बहुत जोर जोर से। तो हम लोग बाद में हम लोग वो पैंट के अंदर वो बुक कॉपी रखते थे, ऐसा दफ्ती रखते थे ताकि पढ़े भी तो वो सर को मालूम चल जाता था। खैर वो सब है, ठीक है। ओके, तो केन होता था भाई साहब, ये केन, ये भाई साहब ये बहुत बड़े हीरो थे। इन्होंने क्या किया, अच्छा चलो अभी तो मतलब बता रहा है कि हीरो है, ठीक है। कोई भाई साहब दहशत के मारे रास्ते में नहीं उतर रहा है और ये केन लेकर उतर पड़े भाई साहब, ठीक है, हाथी के सामने। ओके, बट आई मूव स्लोली टू आई, कहा गया भाई साहब, आई stairs and ended to open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it had held in its trunk. ठीक है, grunted मतलब अभी ये मेरे ऊपर ये आने वाला है। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. वो जब तो आप देखते हो ना वैसा ऐसा धूल उड़ी भाई साहब, वैसा वैसा सिचुएशन ही क्रिएट कर रहा है, ठीक है। People were watching the scene, hypnotized from nearby housetops. Hypnotized मतलब समझते हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं भाई साहब, कुछ मतलब कोई एक्सप्रेशनलेस, मतलब कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसको हम बोलते हैं हिप्नोटाइज। मतलब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा लेकिन उस चीज को आप देख रहे हो, ठीक है। ओके, द एलिफेंट लुक्ड एट मी, पीपल वेर वॉचिंग द सीन, हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स। जितने आपके वर्ल्ड में एक्सीडेंट्स होते हैं वो हिप्नोटिज्म की वजह से होते हैं। हिप्नोटिज्म की वजह से होता है, क्यों? आप अगर देखोगे कभी भी आपका एक्सीडेंट, बुरा एक्सीडेंट कोई बिजी एरिया में नहीं होगा, जैसे कोई मार्केट प्लेस में, जैसे यहाँ से अगर देखोगे, हाँ छोटा मोटा किसी ने धक्का मारा, किसी ने टच हो गया, ये सब होता है, लेकिन कोई बुरा एक्सीडेंट मतलब लाइफ कंज्यूमिंग एक्सीडेंट नहीं होता है। जितने भी आपके बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं वो हाईवेज में होते हैं। इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि बहुत देर तक अगर आप गाड़ी चलाते हो तो एक टाइम के बाद वही चीज़ फिर आप हिप्नोटाइज हो जाते हो। हिप्नोटाइज मतलब अभी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, यू आर नॉट। तो आप जब कोई बिजी एरिया में होते हो, अभी ब्रेक मारना है, अभी रेस करना है, अभी स्लो डाउन करना है, ये आप कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक लंबे हाईवे में जा रहे हैं तो आप कुछ कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व नहीं हो, एक स्पीड पकड़ ली आपने और आप जा रहे हैं, ठीक है, यू आर मोर और लेस हिप्नोटाइज। इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया कि ज़्यादा करके जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो हाईवेज में होते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखा गया कि भाई साहब वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में इतने लोग नहीं मरे 4 या 5 सालों में जितना एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं। और इसका एक मेजर रीजन देखा गया कि इस तरह से हिप्नोटिज्म होती है। और इसका एक और चीज है, ये आप अगर देखोगे वो जो सफेद सा पट्टी होता है ना रस्तों में, वो भी हिप्नोटाइज करता है। किसी मुर्गी को आप उसकी मुंडी पकड़ो, उसको ऐसे दबाओ, मारो मत, और उसके सामने एक ऐसा पट्टी लगा दो और छोड़ दो, वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन परफॉर्म। यही ड्राइवर्स के साथ भी होता है, तो ये हिप्नोटाइज हो जाते हैं ऐसे, मतलब जाने आंखें खुली हैं, कान से सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन बहुत देर से चल रहे हैं, एकदम स्टोन की तरह हो गए। और झपकी आने से एक्सीडेंट नहीं होता है, ज़्यादा करके एक्सीडेंट्स आपका इस हिप्नोटिज्म की वजह से होता है। अलर्टनेस जीरो हो जाता है, अलर्टनेस बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब आपका माइंड, मतलब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपका माइंड काम करना बंद कर चुका है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिप्नोटिज्म। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स के लिए ज़्यादा होता है। इसीलिए एक सुझाव दिया गया कि ज़्यादा बड़े लंबे रोड्स ना हो, बीच में क्रॉसिंग्स हो, ठीक है। तो ये लंबे रोड्स अगर होंगे तो इसमें ज़्यादा एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं हैं, तो बीच में क्रॉसिंग्स हो। जैसे ही बीच में क्रॉसिंग होगा, ड्राइवर अपने आप फिर से अलर्ट हो जाएगा। More crossings and more, the driver will get an opportunity to come back to its senses or rather not be hypnotized, and lesser will be the amount of accidents, ठीक है। इस तरह से रोड के कंस्ट्रक्शन ज़्यादा करके किया जाता है। आप देखेंगे किसी भी बड़े हाईवे में बहुत लंबा हाईवे नहीं बनाया जाता है, बीच में क्रॉसिंग्स रखे जाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ सर्कल या क्रॉसिंग आ ही जाता है, और उसको अकोमोडेट भी करते हैं ताकि ड्राइवर जोंक्ट ना रहे भाई साहब, इस तरह से, ठीक है। होगा ही ये बड़े, एक ही चीज तुम, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ना अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पॉसिबल नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ लो, हो ही नहीं सकता। फिर आप एक आधे घंटे बाद ना बुक आपके सामने होगी, आपकी आंखें खुली होंगी, कान भी खुला रहेगा, लेकिन आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं, ये होगा ही। फिर वो पढ़ाई नहीं हो रही है। इससे अच्छा आप उठो, ब्रेक लो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर आओ, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ऐसे आपका नहीं चलेगा, इट विल नॉट हैपन, ठीक है। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो एक बियॉन्ड टाइम लिमिट नहीं जा पाएगा। हर एक का अपना अपना कंसंट्रेशन लेवल होता है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे। तो द बेटर ऑप्शन वुड बी क्लोज योर बुक, टेक अ ब्रेक, eat something, listen to some music, come back and again start refresh.
क्योंकि आप अगर बैठे हिप्नोटाइज हो चुके हैं, आफ्टर सम टाइम योर माइंड विल स्टॉप वर्किंग, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई साहब, पीपल वेर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम देयर नियर बाई हाउस टॉप। भाई साहब सब देख रहे हैं, अरे क्या हो रहा है, सबके दिमाग, अरे एक छोटा सा बच्चा डंडा लेके जा रहा है, अरे उसको हेल्प करो, ये सब किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है, सब तमाशा देख रहे हैं भाई साहब, अरे क्या हो रहा है, ठीक है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। आपने देखा रहेगा बहुत बार किसी किसी इंसान ने ऐसा बोला रहेगा, अरे भाई साहब बस आ रही थी और मैं ना आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे। इसको बोलते हैं हम हिप्नोटिज्म। एक्सट्रीम फियर में आप कभी कभी हिप्नोटाइज हो जाते हैं, योर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज डोंट वर्क एज दे शुड बी, ठीक है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, मतलब जोर से चिल्लाया उसने, ठीक है, और अटैक मोड में आ गया पूरा पूरा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, डंडा से उसने मैंने मारा उसको। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स। भाई साहब बेहोश हो गया वो, ठीक है। कोलैप्स मतलब मेरे एक डंडे के वार से वो बेहोश हो गया, गोलगप्पे हाँक रहा है ये और कुछ नहीं। एट दिस पॉइंट ईश्वरन would leave the story unfinished and get up mumbling, I will get back after lighting the gas and warming up the dinner। बस तो जैसे आप देखते हो ना सीरियल्स में, अरे कुछ होने वाला था, यहीं पे रोक दिया भाई साहब, ठीक है, ताकि अगले सीरियल में लोगों की रुचि बनी रहे। दे आर बेसिकली इंक्लाइन टू द टीवी सेट्स इन द नेक्स्ट सीरियल, क्या होगा क्या होगा अभी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा इसने भी भाई साहब किया, मतलब यहाँ पे रोक दिया कहानी को और चला गया क्या करने भाई साहब, कुकिंग करने। महिंद्रा वुड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. जब वो वापस आएगा तो फटाक से स्टोरी को चालू नहीं करेगा, वो उत्सुकता बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वरन के अंदर वो सारी क्वालिटीज आ गई थी जो एक राइटर में होता है। राइटर भी ऐसे ही ऑडियंस के साथ खेलता है, वो एक क्लाइमैक्स के सिचुएशन पे लेकर जाएगा, मतलब अभी ये हो, लेकिन उसके बाद अरे शांत बस कुछ और ही इंसिडेंट लेकर आएगा, कुछ और ही विवरण देगा। तो लोगों की एंग्जाइटी लेवल्स को बढ़ाना किसी भी राइटर या डायरेक्टर का काम होता है, ठीक है। दैट्स हाउ पीपल आर ग्लूड टू व्हाट दे आर रीडिंग और व्हाट दे आर रिव्यूइंग, ठीक है। तो ऐसा ही ईश्वरन सीख गया था क्योंकि उसने काफी सारे थ्रिलिंग बुक्स पढ़े थे। 2 days later it was led away, okay, at this point Ishwaran would later कहाँ गए भाई साहब, when he returned Ishwaran would not pick up the thread of the story right away, Mahindra would have to remind him and that the conclusion was pending। महिंद्रा को बोलना पड़ता था भाई साहब, ठीक है। वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन टू रिवाइव द एनिमल, क्योंकि वो एनिमल बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया, वेट बोलते हैं हम जिसको, तो उसने जाकर उस एनिमल को फिर से रिवाइव किया, ठीक है। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, 2 days later it was led away to its mahout to the jungle, it was led away by its mahout to the jungle। 2 दिन बाद उसका जो mahout मतलब जो ये हाथी चलाता है, हाथी चालक जो होता है, वो फिर से उसको भाई साहब जंगल तक लेकर गया। Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? क्वेश्चन नहीं था, इतना बड़ा पागल हाथी जिससे सब डर के भाग रहे थे, जिसके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, तुमने एक डंडे से उसको मार के गिरा कैसे दिया, ठीक है। महिंद्रा का ये क्वेश्चन था। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट। अभी भाई साहब ये और पकार है, जापानीज आर्ट मैंने सीखा है, आई थिंक सर, कराटे और जुजुत्सु इट इज कॉल्ड, आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, इट टेम्परली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम। ये सही है कि जो कराटे, जूडो कराटे होता है, ये नर्वस सिस्टम को पैरालाइज करता है। इतनी जोर से आप मारते हैं किसी जगह पे, ठीक है, कि इंसान का नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो जाता है, इंसान ऑलमोस्ट कोलैप्स कर जाता है। तो एनिमल्स के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। जो लोग फ्री हैंड फ्री स्टाइल करते हैं, ठीक है, दे बेसिकली आर ट्रेन टू डू दैट, ठीक है। लेकिन इसने नहीं किया रहेगा, इसने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि इसको नॉलेज हो गया था और मंद घड़ंत कहानियां बुनता था, ठीक है। तो एक जूडो कराटे मार के इसने एक हाथी को गिरा दिया, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट फॉर दैट यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। आप भाई साहब मार्शल आर्ट्स के चैंपियन होने चाहिए इस कदर क्या कोई इम्पैक्ट लाने के लिए। यू शुड बी अ चैंपियन ऑफ मार्शल आर्ट्स, ठीक है। पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। तो कुछ ना कुछ भाई साहब पकाऊ वाला स्टोरी ये रोज प्रेजेंट करता था, हॉरर एंड सस्पेंस। Whether the story was credible or not, Mahindra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। तो महेंद्र को मालूम था कि ये भाई साहब पका रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ना टीवी था ना रेडियो था, बहुत पुरातन समय की बातें हो रही हैं, और ना ही था मोबाइल।
तो ऑब्वियसली द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वाज समबडी टेलिंग यू अ स्टोरी इन एन वेरी इनक्रेडिबल वे। तो इसका भी टाइम पास हो जाता था, तो इसलिए ये सुनता था। ठीक है, ओके। ईश्वरन, तो यहाँ पे स्टोरी से ज्यादा स्टोरी के प्रेजेंटेशन पे जोर दिया गया है कि किस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। तो ईश्वरन हैड वन, आफ्टर रीडिंग सो मेनी नॉवेल्स एंड सो मेनी बुक्स, ही हैड एक्वायर्ड दिस स्किल ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक मतलब छोटे से स्टोरी को तोड़ मड़ोड़ के भाई साहब कैसे सस्पेंस क्रिएट करके उसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है, दैट इज समथिंग दैट ईश्वरन हैड लर्न आफ्टर रीडिंग सो मेनी बुक्स। One morning when Mahendra was having breakfast, okay, not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror or suspense, whether the story was credible or not. Credible or not मतलब वाकई में ये घटना घटी है या नहीं, ये तो बात की बात है। बहुत ज्यादा संभावना थी कि इस तरह की घटना नहीं घटी है। ठीक है, Mahindra enjoyed listening to it because of the imitable way in which it was told. Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters. तो ऑब्वियसली टीवी नहीं था और उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं था, so there was no source of entertainment but just to listen to his stories. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." ठीक है, तो मतलब हमारे पूर्वजों को हम आज की तारीख में कुछ ऑस्पिशियस दिन है, क्योंकि कुछ मंगलमय दिन है और हम कुछ ना कुछ अच्छा खाना हम अपने पूर्वजों के लिए बनाते हैं आज। ठीक है, तो इनसे परमिशन मांग रहा था। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, क्यूलिनरी मतलब होता है आपके कुकिंग स्किल्स को। ठीक है, अप्रिशिएट किया। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गारिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। ठीक है, You know, sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. तो ये अभी पकाना चालू कर दिया। ये जो हम फैक्ट्री एरिया में रह रहे हैं अभी आज की तारीख में, ठीक है, ये एक समय में शमशान भूमि था। ठीक है, he started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. बेचारे ने अच्छा खासा खाना खाया था और खाना अच्छा लगा था इसको, लेकिन अभी डर आ गया भाई साहब। अगर आपको बोला जाए कि आप शमशान भूमि के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके पैरों तले 4 लाशें दबी हुई हैं, तो कोई भी वैसा घबरा जाएगा, है ना। शमशान मूवी मतलब यही हुआ ना, इसके नीचे 4 लाशें दबी होंगी। ऐसे साइंस बोलता है कि आप 12 लाशों के ऊपर हैं। ऑन एन एवरेज एवरी पर्सन इज ऑन 12 कॉप्सेस। ठीक है, एवरी पर्सन। जो भी आपकी ज़मीन है वो इसी से तो बनी है भाई साहब। हज़ारों साल से हम दफनाए गए हैं, हज़ारों साल से जो हमारे एलिमेंट्स है, चाहे जलाए गए हों चाहे दफनाए गए हों, वो पार्टिकल्स तो रहेंगे ना भाई साहब। वो ज़मीन उसी से तो बनी है। डेड एनिमल्स और प्लांट्स से ही तो सॉइल तैयार होता है। तो ये बट ऑब्वियस है कि ह्यूमंस एटलीस्ट 12, ऐसा एवरेज माना गया है। ठीक है, कि आप 12 लाशों के ऊपर हैं। ठीक है, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वाज वंस अ बेरियल ग्राउंड। ही स्टार्टेड, महिंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्रेजेंट। तो बेचारा परेशान हो गया, अभी क्या। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैंने खोपड़ी देखी थी भाई साहब। ठीक है, Even now I come across a number of skulls and bones. आज भी मैं बहुत सारे skulls और bones देख पाता हूँ। ठीक है, Even now I come across, ईश्वरन continued. तो बहुत सारे मेरे को खोपड़ियाँ और हड्डियाँ मिलती हैं जो humans की हैं। ठीक है, He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. कुछ कभी-कभी मुझे भूत भी दिखते हैं। ठीक है, ये परेशान हो गया भाई साहब। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arms. ठीक है, तो एक लेडी मेरे को रोज, मतलब ये फुल मून दिन, जिस दिन पूर्णिमा रहेगी उस दिन आती है भूत बनकर। ठीक है, एंड दैट इज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ठीक है, तो महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। ये बेचारा डर गया भाई साहब, एंड इंटरप्टेड rather than sharply. You are crazy, ईश्वरन. There are no such things as ghosts or spirits. हर समय याद रखना, जो लोग बोलते हैं ना ये भूत कुछ नहीं होता, एक्चुअली में डर सबसे ज़्यादा उनको ही लगता है। ठीक है, मेरा एक इंसिडेंट हुआ था कि भाई मैं एक ओके, सो ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन। तो महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन। You are crazy, ईश्वरन. There are no such things as ghosts or spirits. It is all a figment of your imagination. एक चीज और है जो गोस्ट के बारे में मुझे रैशनली समझ में आता है, वो ये है कि
गोस्ट जब आप मतलब ऐसे आपके घर में अगर 4-5 जने हैं तब गोस्ट नहीं दिखेगा आपको, जब आप अकेले हैं तो आपको फीलिंग आएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? कोई गया क्या यहाँ पे? ऐसे कोई गया क्या? सराउंडिंग क्रिएट करना। तो आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो स्पेशली इंडियन फैमिलीज होती हैं उसमें बहुत लोग रहते हैं एक साथ ही। जैसे आपका अगर फॉरेन फैमिलीज को देखोगे तो काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पापा काम पे मम्मी काम पे, ज़्यादा करके बच्चे अकेले रहते हैं, तो दे आर ट्रेन, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्रॉम अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड टू लिव अलोन। लेकिन हम इंडियन फैमिलीज में कोई ना कोई घर पे रहता ही है, तो हमेशा मूवमेंट हो ही रहा है। तो जब घर पे कोई नहीं रहता तो आपको लगता है कोई गया क्या, कोई गया क्या, ऐसा ऐसा एक ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जिसकी वजह से अक्सर हमको लगता है कि कोई भूत है, ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है क्योंकि आप एक अलोन एनवायरनमेंट में आपकी परवरिश नहीं होती है जनरली, ठीक है, ज़्यादा करके लोगों से आप घिरे हुए होते हैं और लोग बस ए बाथरूम में कुछ गिरा क्या, कुछ है क्या भाई साहब, ऐसा ऐसा आपको प्रतीत होता है, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट अराउंड यू because of which there is a psychological impact that something is happening, otherwise it's logical. Okay, so it is a filament of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. तो ये भड़क गया अभी, तुम भाई साहब अपने दिमाग का इलाज करा लो, तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, ये सब पता नहीं मन गढ़ंत बातें कर रहे हो, कहाँ से तुमको मुंडी और पता नहीं हड्डियाँ मिल रही हैं और कोई चुड़ैल लाके नाच रही है, ये सब फालतू वाला डिस्कशन दे रहे हो तुम। He left the room and retired for the night, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज। सल्क मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको डांट दिया और आप मुंह फुलाए बैठे हुए हो तो इसको बोलते हैं हम सल्क। तो ऑब्वियसली इसने ईश्वरन को जोर से धमकी मतलब डांटा था जब फालतू मनगढ़ंत बात, तो इसको लगा कि भाई चलो कुछ दिनों तक ये चुप बैठेगा अभी, ठीक है, ओके। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन ईश्वरन दूसरे दिन वैसे का वैसे ही, ठीक है, एज चीयरफुल, जैसे पिछले रात को कोई डांट उड़ उसको पड़ी ही नहीं, ठीक है, ओके। फ्रॉम दैट डे ऑन महिंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. तब से लेकिन वो उस स्टोरी सुनने के बाद से महिंद्रा के अंदर थोड़ा सा डर आ गया था, थोड़ा इधर उधर झाँक ताका झाकी कर लेता था, भाई साहब कुछ मूवमेंट तो नहीं हो रहा है। But he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away. ठीक है, तो सारे फैक्ट्री के लाइट ही इसको दिखते थे, कुछ ज्यादा इसने देखा नहीं, ठीक है। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon nights, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो जब से भाई साहब इसने एक मनगढ़ंत स्टोरी किया है तब से वो बाहर देखना उसने ऑलमोस्ट बंद कर दिया। हालांकि इसको बाहर देखना रात में अच्छा लगता था क्योंकि मून लाइट है, फिर फैक्ट्री के लाइट्स भी हैं, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीनरी टू लुक एट, बट दैट फियर हैड ऑलरेडी इनगल्फ्ड हिम, दैट फियर दैट सम चुड़ैल इज वर्किंग डाउन, ठीक है, तो इस तरह से उसके अंदर एक फियर आ चुका था ऑलरेडी, ठीक है। वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। कोई रोने की आवाज आ रही थी, ठीक है। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। तो पहले इसको लगा कि भाई साहब कोई बिल्ली होगा, और बिल्ली जो है तो चूहे की तलाश में कभी ऐसा होता है। बट द सेकेंड वॉज टू ब्रूटल फॉर अ कैट, ही रेजिस्टेड। तो ये कैट का वॉइस जब उसने दूसरी बार सुना इसको तो रियलाइज किया कि दिस कैन नॉट बी अ कैट, ठीक है। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। तो अभी भाई साहब ये बाहर देखे कि ना देखे, मतलब इसका हवा खराब था अभी, ठीक है भाई, बाहर देखा और कोई चुड़ैल सामने आ गई तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो चुपचाप बैठा हुआ है ये और इसका हार्ट बीट बढ़ गया है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। तो ये भाई साहब बहुत जोर से, फेलाइन मतलब बहुत जोर से आने लगा, ये रोने की आवाज बहुत जोर होने लगी। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोज सिल, ही looked out at the white sheet of moonlight outside। तो इसने मतलब अपना विंडो खोल के वो देखने लगा बाहर। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. Mahindra broke into a cold sweat and fell back to the pillow। कुछ एक फिगर दिखा इसको भाई साहब बाहर, ठीक है, और इसकी हवा खराब, पैंटिंग मतलब भाई इसका बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गया, पसीने आ रहे हैं इसको अभी। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him। क्योंकि जब से इसने वो भूतीली कहानी
किससे सुनी थी, ईश्वरन से, तब से इसको भाई साहब देखो देखो, एक बच्चे को अगर बोलोगे भूत भूत, उसको कुछ समझ में आएगा कि नहीं? आप उसको भूत की कहानी सुनाओगे, समझाओगे भूत क्या होता है, तब जाकर वो भूत के लिए डरने लगेगा, वरना उसके लिए तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। तो आप डर को क्रिएट करते हो, तो इसने सोचा कि भाई साहब मेरे अंदर ये डर क्रिएट हुआ है, तो ज़रूर इस डर की वजह से ही मैंने कुछ देखा रहेगा, ठीक है। ये हेलुसिनेशन बोलते हैं ना, डर के मारे मैंने ये देख लिया होगा, क्योंकि एक्चुअली शायद कोई फिगर नहीं रहेगा, बट जस्ट आउट ऑफ फियर दैट हैज़ बीन incorporated inside me after I heard Ishwar relating to a story or narrating a story of a ghost. This must have been a psychological impact. सिर्फ एक psychological impact. ऐसा ही अपने आप को बोलने लगा। सबकॉन्शियस मतलब आपके अंदर जो आप ड्रीम्स देखते हो जैसे, वो आपके सबकॉन्शियस है ना। तो सारी मतलब जो आपके आजू बाजू घटनाएं होती हैं सारे दिन में या सारे महीने में या सारे साल में, वही ड्रीम्स बन के टुकड़ों टुकड़ों में आपके अंदर आती रहती है, वही चीज़ आप देखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये, ठीक है। By the time he had got up in the morning, had a bath, and came out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. तो अगला दिन मतलब सिंपल दिन था, और जो पिछले दिन जो दुर्घटना घटी थी, मतलब कुछ देखा था इसने, वो ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका था। Ishwaran greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms?" Fetus मतलब मरा हुआ बच्चा, ठीक है, मरा हुआ बच्चा बेसिकली। Fetus in its arms. You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. तुमने उसको देखा ना भाई last night, ठीक है। I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room. आप भाई साहब चिल्ला रहे थे, ठीक है, रात को आप चिल्ला रहे थे, आपने देखा ना आपने, ठीक है। A chill went down Mahindra's spine. तो अभी तक तो महिंद्रा को लग रहा था कि ये स्टोरी झूठी है, मतलब इसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी घटना घटी रहेगी, ठीक है, लेकिन अब ये भाई साहब घबरा गया, ठीक है। He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. तो भाई साहब ये चला गया ऑफिस में और इसने अपने पेपर डाल दिया। पेपर डाल दिया मतलब रिजाइन कर दिया, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट वाज द हॉरिफिक एक्सपीरियंस दैट महिंद्रा हैड, ठीक है।